So we were in the etiology. In this etiology, we'll see the acquired, as congenital will be the congenital only, it would be the genetically, and we'll describe the acquired. See, in the acquired, जो first we'll see the pelvic inflammatory diseases. 6 to 8 times. See, अगर किसी woman is having the pelvic inflammatory diseases or PID more than 6 to 10 times, then it is chance to have the ectopic pregnancy. स्पेशली इन दी क्लेमाइडिया कंडीशन. लास्ट क्लास में मुझे किसी ने क्लेमाइडिया पूछा था. इट इज़ ए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इट कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया. सी, इसमें क्या होता है, अगर किसी वुमेन को किसी भी प्रकार का पेल्विक डिजीजेस होती हैं, किसी भी प्रकार का पेल्विक इन्फेक्शन होता है, तो दे आर एट हाई रिस्क टू हैव द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर. If the woman is taking contraceptive, copper T, progesterone, hormonal pills, mini pills, Norplans, कुछ भी अगर वो ले रही है contraceptive, in case of contraception, it shows the side effects also. Okay, if there is a failure of contraceptions, the contraceptions, there are varieties of contraceptive measures which also show the side effects, and these side effects also can cause the ectopic pregnancy. And here is the percentage also कि कौन कितना percentage जो होता है वो affect करता है. Okay, next is tubal reconstructive surgery. See, if woman is having previously any type of tubal surgery or any type of surgery in the uterus, body parts of any uterus more than 4 or 5 times, so it can cause the it is having the high risk to have ectopic pregnancy. Okay, next is assisted reproductive technique. A woman is not getting the not able to conceive naturally, then she is taking the assistant to have the reproduction. तो अगर ऐसी कंडीशन में there are many methods to have the baby without naturally. जैसे कई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो दे यूज़ टू हैव दी IVF, GIFT, तो ये सब हम यूज़ करते हैं ना. तो ओवुलियन इंडक्शन भी होता है. ओवरीज में ओवुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाता है. उसके बाद जो कई ये भी प्रॉब्लम्स होती है किसी किसी वुमेन को कि वो कंसीव नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओवुलेशन. तो उसमें लैक ऑफ ओवुलेशन के कारण ओवुलेशन का प्रोसीजर इंड्यूस कराया जाता है, दैट वी कॉल दी ओवुलेशन इंडक्शन. तो ओवम फिर जनरेट होना शुरू हो जाता है. देन शी गेट द प्रेग्नेंट. तो ऐसे कंडीशन में भी देर इज़ अ चांस टू हैव दी ectopic pregnancy. Next is IVF ET. In the in vitro fertilization also, जब embryo transfer होता है during this time also there is having a chance to have the ectopic pregnancy. क्योंकि हम IVF एक लैब से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी यूट्रस में. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़रूरी होता है कि यूट्रस में ही ट्रांसफ़र करें बॉडी ऑफ द यूट्रस है. बट ये बिकॉज ऑफ एनी रीज़न ये यूट्रस बॉडी ऑफ द यूट्रस में नहीं इम्प्लांट होके कहीं और किसी और बॉडी पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है. दैट वी कॉल दी इम्प्लांटेशन ऑफ द uterus, sorry, in the case of IVF. Okay, next is GIFT. GIFT is also one of the condition in which the sperm and the ovum will be transferred. See, जब गैमिट का ट्रांसफ़र करते हैं और गैमिट और स्पर्म का जब ट्रांसफ़र होता है ऑन दैट टाइम ऑल्सो देर इज़ अ चांस टू हैव दी ectopic pregnancy. Okay, risk of heterotopic pregnancy. In the heterotopic pregnancy there is also having a chance to get the ectopic pregnancy. Okay, and this is very rare in 1% of cases. Next is previous ectopic pregnancy. अगर mother is having a history of previous ectopic pregnancy, so there is a 7 to 15% chance to have again repeatable ectopic pregnancy. Okay, next is there are the various other risk factor that is very common. See, if the mother says this is the age of 35 to 45, जितने भी एबनॉर्मल कंडीशन है ना OBG में उसके सब में आप ये लिख सकते हो. दिस इज एक ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ. दिस इज़ वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर. एडवांस एज, ठीक है, अगर एज 35 to 45 ईयर्स है तो आप इसको कहीं भी चिपका दो ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में.
नेक्स्ट इज प्रीवियस इंड्यूस्ड एबॉर्शन, अगर पहले एबॉर्शन का प्रोसेस इंड्यूस्ड करा के किया गया है तो देयर इज़ ए चांस टू हैव दी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एंड देन प्रीवियस पेल्विक सर्जरी, मैंने अभी बताया था पेल्विस से रिलेटेड अगर एनी सर्जरी और एनी टाइप ऑफ सर्वाइकल सर्जरी अगर हुआ है तो देयर इज़ अ चांस टू हैव दी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। cigarette smoking, obviously these all are alcoholic or smoking is injurious to health, इससे there is a chance to have the infection or there is chance to have the hormonal imbalance, इसलिए mother can have the ectopic pregnancy. Next is D is exposure in the utero. See, D is daughters होते हैं जो एक्सपोज हुए होते हैं इन यूट्रो ड्यूरिंग हर मदर्स पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू नाउ, डीएस डॉटर वो डॉटर होते हैं जब एक यूट्रस में फीटस होते हैं, मतलब जब वो खुद बेबी होता है। मान लो डीएस एक्सपोजर के बारे में बता रही हूँ आपको, डीएस डॉटर वो डॉटर होते हैं, उनको होने के चांस होते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो पहले ही किसी मेडिसिन से एक्सपोज हुए हैं जब वो उसकी मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, अगर मैं डीईएस डॉटर होती, डीईएस लड़की होती और मैं अब आई एम गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो मुझे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कब होगा, जब मैं बेबी रही होंगी और मेरी मदर जो है वो इस टाइप का कुछ एक्सपोजर हुई होगा, यानी मेडिकल एक्सपोजर, मेडिकेशन एक्सपोजर हुआ होता, तो मैं आई एम द हाई रिस्क वुमेन हु विल गेट द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, मतलब आई विल बी द DES डॉटर। ओके, तो दिस इज द चांसेस ऑफ टू हैव ectopic pregnancy. Infertility, obviously. Salpingitis ischemica nodosa is a typical name है, but nothing is here. In this, what will happen? The tube जो है fallopian tube वो नैरो डाउन होता है, थिकनेस होती है नैरो डाउन, जैसे दिस इज द fallopian tube. अगर salpingitis means there is inflammation of the tube, okay, fallopian tube, but in this case salpingitis ischemica nodosa, the fallopian tube जो होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्पेस है और धीरे धीरे करके ये नैरो डाउन होता है, मतलब थिकन होते जाता है। दिस इज द कंडीशन, और थिकन होके ये गेट इन्फ्लामेटेड इन इन्फेक्टेड, देन इट कैन क्रिएट द चांस टू हैव द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस. इफ देयर इज हैव एनी tuberculosis infection in the genital area, then it can cause the any type of infection, any type of inflammation is having in the genital tract or the uterus, it can cause the ectopic pregnancy in the some परसेंटेज, कुछ परसेंटेज में ये कॉज करने के चांसेस होते हैं. फंडल फाइब्रॉइड, इज देयर इज अ फंडस फाइब्रॉइड इन द फंडल एरिया. एडिनोमायोसिस ऑफ द ट्यूब, इफ देयर इज ए थिकनेस और इफ देयर इज ए कोई बल्जिंग चीज़ जो होती है वो अचानक से नैरो डाउन होना, इसका एडिनोमायोसिस ऑफ ट्यूब. तो एडिनोमायोसिस ऑफ ट्यूब अगर होता है तो इट कैन कॉज दी ट्यूबर प्रेगनेंसी. ओके. ट्रांसपेरिटोनियल माइग्रेशन ऑफ द ओवम, if there is a transfer of the ovum by the help of any type of artificial things, then it can also cause the ectopic pregnancy. So this was all about the ectopic pregnancy etiology. Next we'll see the clinical features.